I am Waqas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. She's a space educator, a social worker, the youngest entrepreneur that I personally know, and a priceless friend of mine. She's a woman driven by passion to explore, passion to serve her country, passion to make space education accessible to everyone. But it hasn't always been easy for her. She had to overcome countless barriers. It was a struggle, physical and mental. But how she kept going, how she kept herself bright in the darkest of times. This interview gives you a brief review of Yumna's journey. I hope you enjoy your visit to Planet Yumna. Assalamu alaikum Yumna, how are you? I'm fine, how are you? I am fine, like तुम आवाज़ तेज़ कर सकती हो अपनी Yumna, क्या हो गया? Like इतना sophisticated बनने की ज़रूरत नहीं, I know you. Okay. This is Jali Talk Show, नौक तारिक अजीज़ का शो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ऊंची बोलूँ. I know इसमें थोड़ी आवाज़ से भी काम चल जाएगा. Okay Yumna. So you recently won Diana Award. Yes. Congratulations for that. Thank you. So is that award basically given to the people who are style icons? Because you wouldn't have get one if it was for style icons. No. Shut up. So who is it given to? Don't make me say something. No, this is not for Style Icon. This award is for people who are doing community service in their own countries. That's it. For education, Okay, what for community health, service for... that you do? You don't know that. Yeah, I don't know that. I promote astronomy and space technology. I thought it was science. astrology. You always thought, and I always correct you, that it's not astrology. So astrology it's में और astronomy astronomy. में क्या difference है? Because I believe in astrology, but what is astronomy? Stupids are the one who believes in astrology, and proper people who are into science are the ones who follow There astronomy. are 1,000 of people who believe in astrology. And you are one of those stupid people. Okay, Yumna, thank you so much. Karali? So, like, what is the difference between astrology and astronomy, basically? Okay. Astronomy is a proper science. Okay? It's based on evidence and everything. Astrology was a science. It is a pseudoscience. It doesn't exist anymore. Astronomy. But still, it existed. It existed at a time. Yes. मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी. It existed और basically astronomy जो है वो astrology से ही बनी है. It's originated from astrology. देखा? But astrology doesn't exist anymore. It isn't accurate at Exists इसलिए नहीं करती because you astronomists No, or the people who promote astronomy. Listen, it's astronomist isn't a term. First of all, it's astronomers. Okay. And then I'm not an astronomer. I'm You are a a space educator. Yes. I know that. Yes. तो मुझे तुमसे ये पूछना है कि in all your life, like you started exploration at the age of 16, I guess? 18. At the age of 18. So like what was the motive behind that? Like you don't have to tell us the whole story, but I just want to know what was the motive behind that because you are an MLT student, medical lab and technologist. So how does these two things connect? That's what I want to know. Do they connect? I just want, yes, they do. There is space for everyone in space. ठीक है? Okay. So space field में आपको साइंसेस भी मिलते हैं और दूसरी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिग्री वाले भी आपको मिलते हैं, सोशल साइंसेस वाले भी मिलते हैं. माई मोटिवेशन बिहाइंड इट अगर आप इन शॉर्ट कहो तो इट वॉज कि मुझे बस आई जस्ट ट्राई टू बिकम समवन whom I needed when I was younger. That is how I can like summarize everything. क्योंकि जब मेरा टाइम था when I was in my school there was nobody to tell me that this is possible, space exists and everything. Like how did you get interested into that space में? I think पैदाइशी I had it within me. I always wanted to क्योंकि see कि you know, अर्थ like- बाहर से कैसी दिखती है and कैसी दिखती है? like yes I want to go up there and see कैसी दिखती है. क्योंकि like when we talk about space अक्सर लोगों को स्पेस के बारे में नहीं पता होता. Like I have worked with exploration और उसके बाद जब मैं जाता हूँ एक दो दफ़ा जब मैं गया हूँ in the field तो I saw the kids were quite fascinated by what you do. यानी उनको तुम दिन में तारे दिखाती हो and all that stuff. Yes. How? How? Because
पहली बात तो ये कि स्पेस सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी फैसिनेट करती है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा Exactly, सा it भी never पढ़ोगे। fascinated me. Yes, because you are into astrology, not astronomy. I'm not into astrology and not into astronomy either. Don't please. Yeah, I'm not okay. I know. Answer your question. You. Anyhow, this is a science जो सभी को अट्रैक्ट करती है, not just kids, बड़ों को भी। सभी को जानने का शौक है कि ठीक है यार, अर्थ की खबरें जो हैं वो अर्थ में रोटेट करती रहती हैं। आप आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फिर आप बड़ी बड़ी फील्ड्स में जाते हो, आप खबरों में सुनते रहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, ये रॉकेट मिसाइल्स बन गए हैं या एटम बम बन गया है, और किस किस फील्ड में क्या क्या हो रहा है। बट व्हाट्स अप देयर, बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो एक क्यूरियोसिटी जो है वो हर इंसान के अंदर होती है कि यार उधर क्या है। इट्स जस्ट लाइक वी पीपल टॉक अबाउट एवरीथिंग। अच्छा यार उसके बारे में पता चला, ये हुआ वो। व्हाट आर द गॉसिप्स? गॉसिप्स आर क्यूरियोसिटी। I love gossips. Yeah, but you don't love space. Yeah, because that's not a gossip. It's not a gossip, but it's curiosity. आपको किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है और आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो yes. So you started it at the age of 18, ठीक है? अब तुमने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया तो I started practical work on ground work at 18. उससे पहले I spent 2 to 3 years ऑन इंटरनेट, बेतहाशा सर्च करना कि किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैं ग्रैब कर सकती हूँ और किस तरह से ये काम पाकिस्तान में शुरू कर सकती हूँ। सो आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 बिकॉज मैंने पहले ही 2-3 साल जो हैं आई स्पेंट ऑन दैट सर्च एंड आई हैड अ लाइक यू कैन से एक आइडिया था माइंड में देख देख के इंटरनेट पे कि यार ये अगर किसी और मुल्क में ये काम हो रहा है तो ये यहाँ पे भी हो सकता है। ओके। एंड व्हेन आई टर्न्ड 18 I joined those organizations. I started following their content and their workshops in Pakistan और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ गया and then I made exploration. I remember like you were the one जिसने मुझे कहा था कि like if you have the internet you have the whole world. Yes. Explore it. Yes. And that's what I did. Over there. Yes. And like I contacted everyone and like that is how I got UNDP wala project. Yeah. Like all those things. इंटरनेट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं मैं तो शायद पाकिस्तान से हूँ इसलिए मुझे शायद कुछ नहीं मिलेगा, मेरा पासपोर्ट ऐसा है मुझे शायद मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता, ये वो। देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भाई, इतने मुल्क हैं, हर मुल्क में हर एज ग्रुप के लिए एक लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट के लिए और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए दे हैव। सो यू मीन टू से देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज नो बायसनेस? In one way, yes. नहीं है। अगर आप खुद करना चाहो तो मिल जाता है सब कुछ। लाइक इंसान को वही मिलता है जिसको। So you practically started work at the age of 18, ठीक है? अब उसके अंदर अगर कोई एक mature woman भी like start करे ना, like if she thinks about doing something on ground, उसको सोचना पड़ता है कि ठीक है यार मुझे ये hurdles आएंगे, like what will people say, what will the family say, फिर उसके बाद will I be able to do that or not? So did you have these apprehensions? Like you just started it and you didn't have to face anything? I just started it. Yeah. I faced a lot of things. Yeah. I faced every single hurdle, being girl, being a medical student, being young. ये सब hurdles थे। आप लड़की हो क्यों काम कर रहे हो? First of all आपको घर वालों से सुनना पड़ता है that why you're doing it. Yeah. तुम्हें इसका क्या फ़ायदा है? एंड देन बीइंग अ गर्ल, आपकी सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं, आप ऐसे ही उठ के किसी भी अननोन जगह पे किसी भी अननोन स्कूल में जाके यू शो अप एंड यू से कि जी हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम दे दें। स्कूल्स नहीं मानते। देन यू आर टीचिंग अ साइंस, यू आर प्रमोटिंग अ साइंस विच इज़ निगलेक्टेड, जिसकी आपके अपने मुल्क में ज़्यादा जॉब्स नहीं नज़र आती हैं आपको। ठीक है, ओके। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्रीज इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को समझा जाता है। Yes. उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं जी तो वो कहेंगे कि नहीं जी दैट्स नॉट वर्थ इट। That's not even a field. वो यही सोचा जाता है ना कि शायद सिर्फ यही 2 डिग्रीज हैं जो बच्चों के लिए प्रेस्टिजियस है और हमारे बच्चों के मतलब वो जो कहते हैं ना कि स्कूल्स की फैक्ट्रीज में हमारे बच्चों के माइंड का जो माइंडसेट एक प्रोडक्ट है ना, अगर तो उसको इसी तर्ज पे डिज़ाइन किया जाता है कि नहीं या तो आपने डॉक्टर बनना है या तो आपने इंजीनियर बनना है, देयर इज़ नो अदर फील्ड। तो
स्कूल्स में जाओ और जब ऐसी साइंस प्रमोट करो तो इस पे भी बहस होती थी, और फिर उनका ये भी कहना कि आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हो और साइंस और बच्चों को आप ऐसा पढ़ा रहे हो। यमुना, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला सवाल, देयर आर पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ा रहे हैं, बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, बट दे आर वर्किंग इन एन अनदर फील्ड, ठीक है, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो हाउ डिड यू टैकल विद दिस थिंग? शुरू में आपको फेस करना पड़ता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि एक तो ये कि आप शुरू से कुछ भी सीख के नहीं आए होते दुनिया में, Exactly, लेकिन आपने करना होता है। बिल्कुल। 2-3 साल आप काम करें, आप एक पहले स्किल डेवलप करें, एंड देन यू वर्क टू इम्प्रूव योर स्किल, देन यू गेट कनेक्टेड विद डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने भी इसी तरह किया था, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, एंड आई स्टार्टेड विद द मोस्ट बेसिक टॉपिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एंड बिलीव मी, अब तक मैं अगर कहीं जाऊं और किसी स्कूल में या किसी वर्कशॉप में मैं चाहूँ ना कि मैं थोड़ा हायर लेवल टॉपिक उठा लूँ, तो नहीं उठा सकती, क्योंकि हमारे लोगों को बेसिक्स नहीं पता। एंड उसके अलावा भी देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन आवर ओन सोलर सिस्टम। बंदा उससे बाहर की स्पेस पे कैसे कदम रखे कि उस सोलर सिस्टम के अंदर ही इतनी ज़्यादा स्पेस, सोलर सिस्टम से बाहर कुछ है? I know that there's a galaxy kind of thing, and like there are stars and stuff. What else is there? Another universe? Okay, I'm just asking. I'm embarrassed that I know you or you know me. But yes, solar system is just a tiny part of it, एक galaxy. Yes. But आप फिर एक स्किल डेवलप करते हो, ठीक है, देन यू इम्प्रूव इट, एंड जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, व्हेन यू अचीव समथिंग, तो आपके पास एक यू कैन से कि एक सॉलिड रीजन होता है टू टेल पीपल दैट यू आर वर्किंग। मेरे साथ I am doing, why am I doing this? Yes, and I can do this. And then starting from the very basic thing, मेरा बेसिक टॉपिक पकड़ने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ बुक्स में एक ही चैप्टर है सोलर सिस्टम, Yes. ठीक है, उसमें भी इतनी चीज़ें कुछ गलत हैं, कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं की हुई। साइंस जो है वो अपग्रेड होती है, रिसर्च उसमें होती रहती है, और करिकुलम भी, हमारी किताबें भी अपडेट होती रहनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। Like Pluto was a planet for a long time. Yes, why, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो भी लंबी चौड़ी कहानी है, तो वो चीज़ें किताबों में नहीं मेंशन जो कि होनी चाहिए। तो मैं उस टॉपिक से पकड़ती थी, तो स्कूल जो हैं वो इजाज़त दे देते थे, और एक तो स्कूल से इजाज़त लेना, फिर स्कूल्स की ये भी डिमांड होती थी कि हमारे बच्चों को आप दे के क्या जाएंगी। तो आई रिमेंबर शुरू के 2-3 साल, यस, दे वांटेड गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। तो शुरू के 2-3 साल में मैं ऐसे करती थी कि आई used to save my pocket money and I used to print different stickers. That's beautiful. Stickers, logos, space related चीज़ें, और वो ढेर सारे आप प्रिंट करा लें, और You sent me the stickers and yes, वो बच्चों को दे दो ना, तो वो like बहुत खुश हो जाते थे, बहुत ज़्यादा। And then I used to get some educational material, जिन organization के साथ मैंने as a volunteer और student ambassador काम किया था, वो मुझे educational material, and they were international organizations. International, yes, and a local organization as well, which was Lahore Astronomical Society. Oh, who Rashad gave bhai? me, yes, they used to give me solar glasses for distribution. Yes, I had those solar glasses. Yes, और मेरे पास शुरू में 2 साल टेलीस्कोप्स नहीं थी, so लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के लोग थे जो मैं जब कहती थी, जहाँ कहती थी, जिस भी स्कूल में कहती थी, वो अपनी टेलीस्कोप लेके आते थे। Yeah, this is a big thing. Yes, it is a very big thing for me. मतलब they literally empowered me. एंड उनके साथ, उनकी मदद से 2 साल काम करने के बाद आई अप्लाई टू अ कंपटीशन, जहाँ पे मुझे फिर मेरी अपनी टेलीस्कोप मिली। तो फिर and now you have 4 telescopes. 3, okay. and a bino, 3 teles and a bino. What? A binocular. अच्छा, लाइक वो तो नॉर्मल हमारे चौक से भी मिल जाती है। नहीं, वो वाली बाइनो नहीं है ये ये चौक वाली बाइनो नहीं है, ये वो नहीं है जिसके अंदर टिक टिक करो तो आगे इमेजेस आ जाते हैं। हमारे चौक से दूसरी बाइनोकुलर्स भी मिलती हैं, आप दूर भी देख सकते हो, यूं कैसे पहाड़ों पे। विंटेज वाली मिलती है? यस, आई विल कम टू दैट चौक। अच्छा, बहरहाल व्हाट आई वाज सेइंग कि you got binoculars and you had yes, I got these things. और यहाँ पे वो बात आती है कि आपके लोग जो है ना, आपको तब नहीं एक्नॉलेज कर रहे होते जब आप बेसिकली काम कर रहे होते हो, जब आप ऑन ग्राउंड मेहनत कर रहे होते हो, आप काम कर रहे होते हो। जब आपके काम के साथ इंटरनेशनल चीज़ का ठप्पा लग जाता है,
तब आपको सारे इस तरह मतलब बुला रहे होते हैं, न्यूज़ जैसे लाइक चैनल्स बुला रहे होते हैं और आप न्यूज़ चैनल्स के पास जा रहे होते हो, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो, एंड लाइक एक दिन इंटरव्यू, फिर दूसरे दिन इंटरव्यू, फिर जो आपके दोस्त होते हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ के लिए टाइम नहीं बचता आपके पास। happens sometimes. कभी-कभी एक टाइम पे दो भी देने होते हैं, कभी-कभी इंटरव्यू वाले हमें कह रहे होते हैं कि मैडम आप गाड़ी से ही लाइव चले जाएं, फिर हम कहते हैं बाय बाय। Yeah, thank you so much, Yumna, for enlightening us and for telling us these things. तो यमुना, जो तुमने ये कहा कि like you had a problem, like not a problem but एक struggle ये भी थी कि like you had to go through this pressure के घर की तरफ से भी होता है, तो was that this kind of a pressure कि ठीक है like टाइम से घर आ जाना है वापस and all that stuff? तो तुमने तो काम तारे दिखाने ही रात को थे, तो how was that possible कि आना तुमने 6 बजे दिन में दिखा दिया हमने हमने सोलर फिल्टर लिया और हमने दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। सन इज अ स्टार और स्कूल्स भी दिन के टाइम होते हैं, तो हमने सोलर फिल्टर लगा दिया टेलीस्कोप के आगे और हमने सूरज दिखाना शुरू कर दिया, which is actually white. Yes. And there is a lot about solar astronomy. सिर्फ not just कि ये वाइट है या हम इसको कैसे देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में जो हम क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। और ये चीज़ इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि स्कूल जो हैं वो डे टाइम होते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर स्कूल्स और किड्स ना कि वो रात को आएँ, तो दिन में अगर आप कुछ ले जाओ और चलो लेक्चर देना या कोई एक्टिविटी करना है समथिंग एल्स। वो जब आप एक स्कूल देख लेता था ना कि अच्छा जी अब टेलीस्कोप भी आएगी, वो फिर सेट थे। जैसे कि पॉपकॉर्न स्टूडियो के तुमने रात को किया था, तुमने जो इवेंट किया था पॉपकॉर्न स्टूडियो, यस, वो तो अभी रिसेंटली किया ना, अब तक आके तो लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई और अब आके लाइक फैमिली भी कहती है कि ठीक है, फैमिली इज परफेक्टली फाइन विद इट एंड दैट इज गुड बिकॉज़ आई लव आंटी, शी इज अमेजिंग। दे आर नॉट 100% फाइन, मतलब लाइक they are, even if they are 50% fine, but the thing that I have to ask you that she is supportive, family is supportive, yes, but the situation that has been going on in our country, the incidents that we are hearing about, ठीक है, रोज कोई ना कोई there's incident coming up related to girls and security, और उसके बाद फिर domestic violence bill जो है that it got rejected. तो do you personally feel safe? No, I don't, and that's the reason I don't put my telescope at night at public places. पहले काफ़ी हद तक एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स कहते थे कि इतना ज़्यादा लाइक यू शुडंट पुट आउट योर टेलीस्कोप मोर ऑफन इन पब्लिक प्लेसेस, रात के टाइम, दिन के टाइम जो भी करना है। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाती हूँ, अभी भी जब भी मैं जाती हूँ आई ट्राई टू ब्रिंग माई फैमिली मेम्बर्स या दोस्त, जैसे यू वर देयर ऑन पॉपकॉर्न स्टूडियो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी को साथ लेके जाऊँ, क्योंकि एक दो बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हुआ even though I was with my friends and family. तो I would openly say that no, I don't feel safe, especially अगर मुझे रात के टाइम काम करना हो। Even अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर भी काम कर रहे हो ना, I think that's more dangerous. Yes, when मतलब somehow you came across creepy people. 100 में से कोई 1-2 लोग भी जो है ना, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बुरा कर जाएंगे। मतलब कुछ होते हैं कि I don't know how to explain कि वो उनसे आपको like you don't get the good vibes. Yes, और फिर उनके साथ मैं like I'm a professional, मुझे काम करना होता है, I have to deal people, I have to attend people, I do tell people कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, ठीक है? I know the people. But when I come across such people, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि किसी family member को या किसी दोस्त को आगे कर दूँ कि यार explain them. और यहाँ पे लोग इस पे भी नहीं छोड़ते that if you are just giving away your contact card, तो उस पे भी they will keep contacting and they will keep how are you ma'am, how's the work going? I have stopped, like मैंने अपना personal and business number हमेशा से अलग किया हुआ है, हमेशा से फ़ोन अलग किया हुआ है, अलग, funny thing, I'm just laughing at your इस पे अलग calls आ रही हैं, but it's fine, it's my business number, बज रहा है, बजे, if somebody is like तंग कर रहा है, करे, but still it's not ethical ना, आपका एक experience खराब हो जाता है। The point is that people should understand this by now. और जब भी मैं मतलब काम करती हूँ, अगर 100 लोगों को मैंने अटेंड किया और मेरा इतना अच्छा इवेंट जा रहा है, बट वो जो एक इंसान होगा ना ऐसा, वो आपका दिन खराब कर देगा, वो आपका एक्सपीरियंस खराब कर देगा, एक्सपीरियंस खराब कर देगा, and it brings down your confidence somehow. और नेक्स्ट टाइम मैं वो काम करने से पहले 10 दफ़ा और सोचूंगी कि यार मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Even I can totally relate to it. ठीक है, और मतलब सब छोड़ो, like they think कि अगर
कोई बंदी काम कर रही है और अगर उसका कोई इंटरव्यू आ गया है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, तो आप ये लोग समझते हैं कि ये ना अगले इंसान Public को ऑन property करते हो हैं, गई है। हाँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया और हम इसको जो मर्जी कहें. And I am she using should the word listen. public property and not public figure because they treat people like Yes, public property, not exactly. like public Yes, figures. they do not treat like public figure. They treat you like public property के मतलब उनको लगता है कि हमें उन्हें सुनना चाहिए, हमें उनके फजूल कमेंट सुनने चाहिए, हमें उनकी कॉल्स पिक करनी चाहिए. There are amazing people जिनसे बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स भी आता है. लेकिन then there are people जिनका इतना बुरा रिस्पॉन्स होता है कि मतलब मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाती हूँ. एंड देयर वाज अ टाइम, पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन उसमें कोई 10% रिस्पांस जो था वो बुरा था. उसके बाद से मैंने अपनी चीज़ें, अपना इंटरव्यू, अपनी अचीवमेंट्स अपनी ही प्रोफाइल पे लगाना छोड़ दिया. Yeah, you stopped sharing stuff. यस, आई स्टिल डोंट. You have been through a lot of struggles in your life. ठीक है. So I actually want to ask you, what was the most struggling moment in your life? That one most struggling moment in your life when you thought कि ठीक है यार, I cannot take it anymore. Now I want a break. I know there were many, but I just want to know one. There were many. There were many. I think in general जो एक चीज़ होती है वो ये होता है कि आप like you have to prove yourself to your family. ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है. Yeah, I go through that every day. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ये फेस नहीं करना पड़ता. लेकिन एक तो ये चीज़ होती है बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई ना, हमें अपनी सोसाइटी में, हमें कल्चर में, मतलब when I have to go out, I have to like justify के ठीक है यार मैं काम कर रही हूँ. शुरू के 2 साल में तो घर वालों को लगा था कि अच्छा यार एमी कर रही है, शौक पूरा कर रही है. बट दे डिडंट एक्सपेक्टेड ना कि मैं इतना ज़्यादा लाइक So relate. कि ज़्यादा करूँगी और काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा. और दूसरा एक गिविंग अप मोमेंट शुरू में आया था. अच्छा, व्हेनेवर स्कूल्स ट्रीट यू बैडली ना, या जब कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान कोई अच्छी सीट पे बैठा हुआ इंसान इस तरह की बात करे कि दिस साइंस इज़ वर्थलेस और आपकी जो काम कर रही हो ना इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो बुरा लगता है. एंड इट हैपन्स. और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है. और व्हेन यू फेस बिग प्रॉब्लम्स विच आर लाइक हमारे मुल्क से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोप नहीं आ रही थी. yes, that was a very big giving up moment when I won my first telescope और कस्टम वाले मेरी टेलीस्कोप नहीं दे रहे थे. so वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिविंग अप मोमेंट था. No, why was it a giving up moment? ठीक है, like टेलीस्कोप आ रही है and there was some hurdles, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होंगे तो. no, it's not like that. देखो मैं दिल्ली कस्टम ऑफिस जा रही थी एयरपोर्ट. Oh I my was God. 19 or 20 उस टाइम. ठीक है, मेरे now I can feel मैं that. कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट जा रही हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइक आप फीमेल्स तो देखते ही हो. एंड आई एम गोइंग ओवर देयर विद माई ब्रदर और विद माई मदर. ठीक है, अब्बू के साथ, एक मम्मी के साथ, एक भाई के साथ. और रोज़ आपको इतनी फजूल बातें सुनने को मिल रही हैं कि मतलब आप खोल के देख रहे हो, आप उस पर देख रहे हो कि मेरा नाम लिखा है उस पर, आप उसके साथ देख रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आई है कि ये एक गिफ्ट है, ये जीता है, ये इसको दे. And they're not just getting one single point that it's a simple telescope. Yes, and और वो भी मेरे लिए गिविंग अप मोमेंट नहीं था. गुस्सा चढ़ता था मुझे, दुख भी होता था, बट स्टिल मैं उनके प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रही थी कि ठीक है यार वो जो कहते हैं, जो मांगते हैं इनको दे दो. बट द गिविंग अप मोमेंट वाज इन्हीं दिनों में मेरे प्रैक्टिकल्स और वाइवाज हो रहे थे. आई वॉज गिविंग माई सेकेंड ईयर एग्ज़ाम का वाइवा. आई वॉज सिटिंग विद एक्सटर्नल एग्जामिनर और मेरा फ़ोन रिंग किया था. मैं उससे तब वाइवा दे रही थी और मेरे एग्जामिनर ने कहा इट्स ओके, आप फ़ोन सुन लो. आई केम आउट सेकेंड ईयर FSC सेकेंड ईयर. नो, MLT का. ओके, मेरे को तब तो अपनी सेल्फोन भी लाओ नहीं थे. ओके, मैं यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ. तो तब मैंने जब कॉल सुनी है तो मुझे फ़ोन पे जो कहा गया, उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपको ये नहीं दे सकते, टेलीस्कोप्स जो हैं ना वो दहशतगर्दी का आला होती हैं तो हम नहीं आपको दे सकते. ये चीज़ मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दहशतगर्दी का आला. यस,
ये मेरे लिए बहुत The मुझे exact words that they use? यस अब मैं मतलब आई डोंट नो हाउ टू मतलब इसको मैं कितने डिसेंट अल्फाज में मैं आपको लपेट के बताऊं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट दे सेड। और वो अब खुद सोचो, एक 19-20 साल की बच्ची मेहनत कर रही है बिला वजह, जिसको लाइक एक अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए शी इज प्रमोटिंग समथिंग। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, बट हाँ मुझे इनर सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करना था, ठीक है। और आप उसको आगे से ये कह रहे हो तो, और उस वक्त मैं During the viva. यस एंड ड्यूरिंग द वाइवा उस वक्त मेरा इतना लाइक दिमाग खराब हुआ कि यार जो एनर्जी मैं यहाँ पुट कर रही हूँ एस्ट्रोनॉमी के काम में, आई कैन पुट दैट सेम एनर्जी इन माई ओन डिग्री, और उसमें मैं बहुत एक्सेल कर सकती हूँ। मैं 2 कश्तियों की सवार बनी हुई हूँ, मैं अपनी मेडिकल डिग्री कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, साथ लैब वर्क हमारा बहुत टफ होता था यूनिवर्सिटी में, मैं वो भी कर रही हूँ। लाइक शुरू के 2 साल बिलीव मी मैं अपना लैब वर्क बंक करती थी, 1-2 घंटे बंक करती थी, सामान घर से लेके जाती थी कॉलेज में लैब का 1-2 घंटा बंक करना या कोई लेक्चर बंक करना, एक स्कूल में जाके सेशन करना, वापस सामान लेके आ जाना, लैब में काम करना और फिर घर जाना। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू। मतलब मुझे क्या पड़ी है ना इतनी ज़्यादा करने की, व्हेन इन दी एंड मुझे इस किस्म के अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग, मतलब मेरे लिए वो बहुत टर्न ऑफ पॉइंट था कि यार मतलब क्या ही मैं करूं। पर ठीक है, ऐसे तैसे करके वो जब टेलीस्कोप आ गई तो बस वो एक इंटरनेशनल ठप्पा लगने की देर होती है, तो फिर ये आप लोगों को समझते हैं कि हाँ यार इसकी वर्थ है। मतलब एक इंसान आपके अपने मुल्क में, आपने अपने मुल्क का इंसान काम कर रहा है, आप उसको इग्नॉलेज नहीं करोगे। बट वी हैव दिस, वी यूज दिस टर्म ना, गोरा कॉम्प्लेक्स। Yes. व्हेन यू हैव दैट स्टैम्प के जी आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो फिर आपकी नेशन जो है वो आपको फिर तो वाह हो जाती है, बल्ले बल्ले। दिस ये नहीं, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। It is. क्या फ़ायदा जब लाइक आई एम वर्किंग फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि अच्छा आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करती हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा बाहर जाती होंगी। नो, But you went to Japan. that Once. yes, that was my first international tour. That was for space. ठीक है, उससे पहले मैंने ठीक है रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, बट मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करके बाहर जाके कोई ढंडोरे नहीं पीटे। मुल्क में बैठ के मुल्क की कम्युनिटी सर्विस मतलब उनके लिए काम का। एग्जैक्टली, बट दे स्टिल डोंट एक्नॉलेज यू ना, यही तो पॉइंट है। तो जैसे ही आई गॉट द टेलीस्कोप, तो तब आपको वो एक्नॉलेज करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ भाई अब ये चीज़ है। फिर आपको स्कूल्स भी बुलाते हैं, फिर आपको सब लोग बुलाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, बट यही चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को ना, ये फिर आप पे खुद डिपेंड करता है कि आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। Exactly. Like, would you like to see beyond that? या आपने like वहीं पे स्टक हो जाना? मतलब मुझे ये नहीं करना था कि अच्छा यार अब एक इंटरनेशनल ठप्पा लग गया, चलो घर बैठ जाओ। नो, या अगर जी अच्छा चलो अब एक अचीवमेंट हो गई है जी, लोगों को पता चलने लग गया मेरा, चलो जस्ट लीव दिस वर्ल्ड। नो, आई वांटेड टू वर्क। ठीक है, एक चीज़ जीत ली है। So like you worked, but during that time, I guess I asked you that before as well. What was that thing that kept you bright in that struggling moment, in that darkest time? ऐसे काम जो करने होते हैं ना, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। Yes. ठीक है, And you So should you- have some self compassion, you can yes. say. तो आपको खुद ही ये काम करने होते हैं। What's the passion? पैशन या मोटिवेशन किसी और ने आपको आके क्यों पैशन के टीके या मोटिवेशन के टीके लगाने होते हैं? द थिंग आई एम डूइंग, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। देर आर टाइम्स व्हेन आई फील वेरी वेरी लो, जब मेरा दिल करता है कि यार जस्ट बाहर में जाए सब कुछ, एंड आई जस्ट वांट टू गिव अप, आई टेक अ ब्रेक, आई जस्ट Yeah, we just talk and everything is fine. I know. पर फिर जब मुझे काम करना होता है तो हाँ, जब मेरी ब्रेक हो गई पूरी एंड जस्ट यू नो आई वेंट टू दिस हाइबरनेशन मोड, Yes. गायब हो जाती हूँ, डिस्पेयर हो जाती हूँ और फिर बस कोई काम नहीं करती। देन आई इन्वेस्ट सम टाइम इन वर्किंग harder actually, Yes. and then I come back with a bang. Oh yes, you do, because I like love doing दरमियान that. में you were disappeared. Yes. फिर अचानक ही you came up with Diana Award for the most stylish icon. तो Oh no, sorry, Oh, it wasn't. God. Sorry, it wasn't. Because you cannot get that. I forgot. Sorry, I forgot. आपको हर एक काम के बाद, हर एक छोटी मोटी अचीवमेंट के बाद ये महसूस होता है कि अगर मैंने ये कर लिया है तो शायद ये बहुत आसान था,
या फिर आई डोंट डिजर्व इट. यमुना, Like जो भी I उन्होंने always कहा go ना, down into this imposter syndrome. imposter syndrome, And I it was going to helps say me. that. It helps me to work even harder and to keep going on. I think my imposter syndrome is something जो मुझे काम That करने keeps you देता है. going. Yes, क्योंकि अगर तो मैं ये सोच लूँ कि अच्छा यार ये कर लिया, अच्छा भाई फॉर एग्जांपल इफ आई से अच्छा भाई डियाना अवार्ड मिल गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा काम हो गया, दैट्स इट. तो आई थिंक उसके बाद तो मैं बैठ जाऊंगी, उसके बाद तो मैं काम यही, नहीं क्योंकि करूंगी. देखो, like every goal that you set up for yourself in the past, you have achieved it. ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. yes. अगर तुमने उसको, अल्हम्दुलिल्लाह. for example, like if you would have stopped, कुछ भी नहीं Diana होना था. wasn't an option, ठीक है? Never, मतलब And कुछ even कभी if you होना ही stop नहीं था. यहाँ पे, आगे फिर you don't have any option, you will just stop. तो I think अगर मैं तभी रुक जाती जब मुझे कस्टम वालों ने बोला था, तो exactly. उसके बाद ये कुछ भी नहीं होता. तब तक तो लाइक यू नो बिल्कुल अर्ली फेज था. और अभी भी जब मैंने जो 4 साल का काम कर लिया अपनी थ्रू आउट मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ, तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि वो सब जो है ना, लाइक दैट वाज नेवर प्लान्ड. Becoming a space educator was never my goal. And that is this just something not my- that you yes. liked. That is something you love. That is something that just happened. It's a beautiful accident. It's not my final destination. It was never my goal. Sometimes मतलब जब कोई इंटरव्यू होता है, जब लोग ईमेल करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इधर उधर मतलब छोटे बड़े शहरों से ईमेल करते हैं, और अक्सर ईमेल्स में ये लिखा होता है मैडम आपका काम देखा, बड़ा अच्छा लगा, ये वो. ईमेल्स में, मैसेज में, वन ऑफ माई बिगेस्ट गोल इज टू बिकम अ स्पेस एजुकेटर. और यहाँ पे मुझे समझ लगती है, अच्छा कभी कभी मुझसे लोग ये भी पूछते हैं स्पेस एजुकेटर के लिए कौन सी डिग्री करनी पड़ती है. तो मुझे यहाँ पे समझ लगता है कि लोगों को गलत मतलब वो ना गलत मतलब दे रहे हैं. उनके कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले हुए हैं. यू अगर आप मेरा काम देख रहे हो, अगर आप मेरा इंटरव्यू सुन रहे हो, तो हर्फ ब फॉलो नहीं करना. टेक आउट द मैसेज. Exactly. आई नेवर गिव अप. हर्फ बा हर्फ खूबसूरत. I never gave up. I tried to follow my dreams, and I am still trying. This is not my final destination. मुझे अभी और बहुत कुछ करना है. Exactly. अभी शादी भी होनी है और फिर इसके बाद yeah, like for South Asian women, like it's the option, like that is one of the options after they graduate. कि शादी कब हो रही है? And people must have asked you that question. People must have asked you that question. Trust me, they have. Yeah, and you're on the top of that list. I know, but still, when are you getting married? Never. So how you actually deal with this question? How do you deal with desi aunties who I ask just you tell this them कि question? मुझे बड़ा आदमी बनना है and that's it. और वो फिर चुप कर जाती हैं. पहले मैं बड़ा आदमी बनूंगी फिर देखेंगे. I think that was Cher, or maybe it was like Sophia Loren, who said that I am the most richest man, mom. Yes, I Like am she the said, rich man. I am the rich man, mom. Like she said that. You are rich. I am not. I am not. But it's not about being rich. It's not about the paper money. मैं ये नहीं कह रही कि ये शादी नहीं करनी चाहिए या it's not. It's just a part of life. ठीक है. It is. But it's not about कि जी अगर उम्र हो गई है या आपकी डिग्री पूरी हो गई है तो आप शादी कर लें. आप जब तक यहाँ से प्रिपेयर नहीं है आपने क्या ही करना है आगे बिल्कुल. And I don't think so. Like I have a set of goals and उससे उनको पूरा किए बगैर तो I am not doing But anything. Yumna, your goals keep expanding. That's the point. Yeah. Yumna, thank you so much for being on this show. और I feel honored. Okay, no, I don't. I feel really good to have you on my show. Okay. Because like मैं तुमसे कब से कांटेक्ट कर रहा था कि आ जाओ, but like there were lots of news channel, पता नहीं कौन से, there was Geo and then Tribune की news and then Diana Award and all that. So I was like, where is my friend? Like where is my friend?